Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. We are in the last chapter, that is chapter number 8, Introduction to Management. And in this particular chapter, we have covered certain points. Today we are going to start with page number 156, that is levels of management. So I will request everyone to come down to page number 156 in your textbook. What is level of management? As you can see in the chart, level of management is divided into three parts, and the shape of this thing is like a pyramid. Why pyramid? Why not square? Why not a circle? Why only pyramid structure is given or a triangle structure is given? Behind this particular structure, there is an idea that at top level, the number of people are less as compared to the bottom level, isn't it? टॉप लेवल पे जो भी सीईओ होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मैनेजर्स होंगे, उनके नंबर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल लेवल और लोअर लेवल, है ना. मिडिल लेवल पे नंबर ऑफ मैनेजर्स, number of departments is larger as compared to top level, and at the last lower level workers are there, different factories are there, factory workers are there, so lower level is much larger as compared to middle level and top level. So it is very much suitable. The type of structure which we can see is in the form of pyramid, right? So level of management is divided into three parts: top level, middle level and lower level. Let us discuss this thing. Organization is a group of persons which work together to achieve a common goal. What is an organization? Organization is a group of person. Organization क्या है? एक group है, persons का group है. वो वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करता है, और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए हो सकता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए हो सकता है, ठीक है. बट ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मीनिंग है जहां पर एक ग्रुप किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करता है. दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. In this process, various people work together according to their position. बहुत लोग अपने designation के हिसाब से, position के हिसाब से काम करते हैं, qualities के हिसाब से काम करते हैं, और the skill which they have, accordingly they work. ठीक है, under the management of specific person or a group of person. However, the size of every organization is not the same. In reality, you can see हर एक organization same नहीं होता. कहीं पर organization बहुत ही huge होता है, giant होता है, मोर देन 5,000 10,000 एम्प्लॉइज उसमें काम करते हैं. कोई और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मॉल होता है, देयर कैन बी नॉट मोर देन 5 to 6 पीपल एज वेल, है ना. छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 4 से 5 लोग मिलकर के चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो साइज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट. Some organizations are small, some are medium and some are large. The style of managing the organization may differ for all this scale, but classification of all human resources into different group is essential for the organization. तो इनका काम करने का तरीका, मैनेजमेंट का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट उसका क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमको अवेलेबल हैं, उनको डिफरेंट क्लास में सेग्रीगेट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. In the case of small organization, for example, traditional grocery shop और स्टेशनरी शॉप, द क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल. ठीक है ना, छोटा सा शॉप है, इसमें एक या दो एम्प्लॉय काम करें, तो क्लासिफिकेशन कितना सिंपल है. टॉप पे ओनर है, उसके नीचे दो वर्कर है ना, वेरी सिंपल. बट इन द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन सच क्लासिफिकेशन प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड. देयरफॉर इट इज डन बाय मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट में पीरियडिकली, डिपार्टमेंट वाइज, लेवल वाइज डिवाइड किया जाता है. These parts are called levels of management, और इन्हीं parts को कहा जाता है levels of management. The levels are made according to the size and requirement of the organization. ये level कैसे बनाए जाते हैं? It depend upon the size of the organization and requirement of the organization. Usually there are 3 levels. तो generally तो 3 levels होते हैं. हमने जैसे डिस्कस किया स्टार्टिंग में, टॉप लेवल जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब काउंट होते हैं. मिडिल लेवल में फंक्शनल मैनेजर, दैट इज फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऐसे एडवर्टीजमेंट मैनेजर, वेरियस टाइप ऑफ मैनेजर इसके अंदर काउंट होते हैं. और लोअर लेवल में क्या होता है? सुपरिटेंडेंट्स, सुपरवाइजर, फॉरमैन,
एंड वर्कर्स, ये सब आ जाते हैं। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पिरामिड स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। सो व्हाट इज टॉप लेवल? टॉप लेवल का जैसे कि हमने देखा, ये आपके माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए कि टॉप लेवल पे टॉप अथॉरिटीज कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोल सकते हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्या? दिस इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ये हाईएस्ट अपेक्स अथॉरिटी है इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर एटसेट्रा। टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम द विजन, मिशन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, क्या अचीव करना चाहता है, उनका गोल क्या है, ये सब डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल अथॉरिटीज। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइड द पॉलिसी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का पॉलिसीज क्या होगा? दैट इज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इनके फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं यहाँ पर? टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला इनका काम है ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स डाउन द लाइन क्या ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना है। फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो उसको अचीव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, उसको अचीव करने के लिए क्या प्लान्स बनाना है, पॉलिसीज बनाना है, दैट विल बी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला काम डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, सेकंड वर्क फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, सी दैट द पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। आपने प्लान तो बना लिया, तो उसको आपको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा कि प्रॉपर्ली ये इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस। अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने जो पॉलिसीज बनाई है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वेरियस डेजिग्नेशंस बनाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, पोजीशंस बनाने पड़ेंगे टू अपॉइंट इन चार्ज। आपको अब इंचार्ज हो गया, मैनेजर हो गया, हेड हो गया, है ना, सुपीरियर हो गया, उनको अपॉइंट करना होगा। दैट इज मैनेजर एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड गिव देम डायरेक्शंस टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहां पर आपको डिपार्टमेंटल हेड और इंचार्ज को अपॉइंट करना पड़ेगा। टू इवेल्युएट, मूल्यांकन करना पड़ेगा द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आपने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं और उसमें आपने किसी को इंचार्ज रखा है, ह्यूमन रिसोर्स रखा है, तो उनका इवेल्युएशन करना पड़ेगा वेदर दे आर वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है? तो ये जो काम हो गया, हमने देखा ज्यादातर जो काम है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, मतलब जो ब्रेन काम करता है ना, डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, प्लान द पॉलिसीज, पॉलिसीज प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं वो चेक करना, वेरियस डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन प्रिपेयर करना, जो इंचार्ज होगा उनका अपॉइंट करना, और इवेल्युएट करना वेदर द ह्यूमन रिसोर्स इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? इट इज द लेवल बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। दोनों लेवल के बीच के लेवल को हम बोलते हैं मिडिल लेवल। नाम ही है ना मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट विच वर्क अंडर द टॉप लेवल अथॉरिटी। जो किसके अंडर में काम करता है? टॉप लेवल अथॉरिटी। तो ये डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, या आप मैनेजर्स कह सकते हैं इनको। इट इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इनका मेन काम होता है प्लान को इंप्लीमेंट करना, है ना। जो भी प्लान एंड पॉलिसीज होगा, जो डिसाइड किया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको इंप्लीमेंट करना इनका काम होता है। It include in charge or head of various department, for example finance manager, production manager, sales manager, human resource manager, marketing manager, etc. They work on getting things done which are decided by top level manager. जो top level manager decide करते हैं, उनके बेसिस पे हमारे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है? सो दे वर्क ऑन गेटिंग थिंग्स डन विच आर डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजर। तो जो टॉप लेवल मैनेजर ने प्लान्स एंड पॉलिसीज दी है, वो काम करा कर लेने की जवाबदारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है, विद द हेल्प ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। किसकी मदद से? लोअर लेवल मैनेजमेंट की मदद से ये काम करा करके लेते हैं। फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है? सो दे आर द लिंक, वेरी क्लियर। टू अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है, पॉलिसीज बनाया, उसको समझ कर लेना, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन काम किसका है?
मिडिल लेवल का है, तो हमें प्लान्स एंड पॉलिसीज अच्छे से समझ आ जानी चाहिए सो दैट ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। प्रिपेयर द प्लान ऑफ एक्शन। अब एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे हम इसको अचीव करें, उसके लिए प्लान बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अचीविंग द गोल ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन प्लान रेडी करना चाहिए, उसको प्रिपेयर करना। ये प्रिपेयर करने की जवाबदारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। टू असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टाफ वर्किंग इन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है उनको क्या काम करना है, उनका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उनको देना। ट्रेन द स्टाफ फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा स्टाफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैरी ऑन करे, इसके लिए उन्हें ट्रेन करना। अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ, और फिर लोअर लेवल स्टाफ का अपॉइंटमेंट। गिव टाइमली रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको समय समय पर रिपोर्ट प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजन एंड प्रिपेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज। एंड कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, और डिपार्टमेंटल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करना। तो ये है फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमने देखा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रिपेयर करने पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये एम्फेसिस करता है इंप्लीमेंटेशन पे। किस पे, इंप्लीमेंटेशन पे, टू गेटिंग वर्क डन, गेटिंग वर्क डन। नाउ द थर्ड वन, लोअर लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एज वी ऑलरेडी नो कि मिडिल लेवल के नीचे ही लोअर लेवल काम करता है। It is also called as operational or supervisory level of management. क्या कहा जाता है इसे, operational और supervisory level of management. It includes superintendent, supervisor, foreman and other junior executive. तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको बाय हार्ट करना है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो इंडिकेट करेंगे यू गॉट द पॉइंट, यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं ये, टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिडिल लेवल। जैसा मिडिल लेवल मैनेजमेंट बात करेगा वैसा इनको काम करना पड़ता है। ठीक है, असाइन वर्क टू द सबऑर्डिनेट। इनके जो सबऑर्डिनेट है ये अपना काम उनको असाइन करेंगे। ठीक है ना, सबको उनकी ड्यूटीज डेलीगेट करेंगे। गिव इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को कैसे काम करना है उसका इंस्ट्रक्शन देंगे। डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट वेर एवर नेसेसरी, जहां जहां जरूरी लगता है उसे डायरेक्ट करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सेटल द डिस्प्यूट, अपने सबऑर्डिनेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डिस्प्यूट को सेटल करना है। लुक आफ्टर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग्स हैं फैक्ट्री के अंदर वो सब देख रेख करनी है। टू कंडक्ट क्वालिटी चेक ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक की भी जवाबदारी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो ये हमने देखा फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो वी हैव कवर्ड 3 particular level. First one top level management, second one middle level management, and third one lower level management. So next topic in front of us is management is an art, science and a profession. ये question है whether management is an art or a science or a profession. management है क्या, तो हम इसे आर्ट से कंपेयर करेंगे, साइंस के साथ कंपेयर करेंगे एंड प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो जाता है, एप्लीकेबल एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ठीक है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनहेरेंट पार्ट का मतलब क्या होता है, इनबिल्ड है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो मैनेजमेंट करना ही करना है, विदाउट मैनेजमेंट देयर इज नो बिजनेस। ठीक है, on this context it is said that without effective management it is difficult to achieve the goal. बिना effective management के आप गोल को अचीव नहीं कर सकते।
या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए गोल को अचीव करना विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एग्जैक्ट नेचर क्या है उसको डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो कभी कभी आपको जिस क्षेत्र में इसको अप्लाई करना होता है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट चेंज भी होता है। इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। अलग अलग नजरिए से देखने पर आपको ये डिफरेंट तरीके का मैनेजमेंट भी दिखाई देगा। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू स्टडी मैनेजमेंट सेपरेटली फ्रॉम दिस ऑल थ्री डायमेंशंस व्हिच आर एज फॉलोज। तो ये जो तीन नजरिए हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, इन तीनों डायमेंशन से देखने की उसे जरूरत है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है? तो सबसे पहले देखते हैं कला होता क्या है, आर्ट है क्या? आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। अपने हुनर का इस्तेमाल करके, अपनी कला का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके अगर आपकी इच्छा को आप डिजायर रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, अप्लाई कर दो, तो उसे हम आर्ट कहते हैं। आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर रिजल्ट। आपने जो इच्छा की थी, आपने जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट आप लेकर के आते हैं अपने स्किल का इस्तेमाल करके। इसे कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला। एन आर्ट इज ऑल्सो क्रिएटिव एबिलिटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ अ पर्सन। आर्ट और क्या होता है? आर्ट किसी की क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है। दिस इज इनबॉर्न और नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो कभी कभी ये नेचुरल क्वालिटी होती है, इनबॉर्न भी होता है ना, कोई कोई बचपन से अच्छा सिंगर है या पेंटर है, या ये एक नेचुरल क्वालिटी उसके अंदर होती है कि जिसकी वजह से वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके डिजायर रिजल्ट को ला सकता है। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि इनबॉर्न क्वालिटी हो, नेचुरल क्वालिटी हो। आप काफी प्रैक्टिस के बाद, काफी रियाज के बाद ये अपने आप में वो क्वालिटी को आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, डायरेक्टिंग द प्लेज और मूवीज, म्यूजिशियन, मैजिशियन एटसेट्रा कम्स अंडर द टर्म आर्ट। तो ये जितने भी नाम हमने लिए, एग्जांपल लिए, वो आर्ट के अंदर में आते हैं। In short, an art can be defined as a way of performance of inborn quality or a skill in which there is no compulsion of having a specific educational qualification. तो आर्ट को देखो कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एन आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस देने का तरीका है, ऑफ इनबॉर्न क्वालिटीज, जो क्वालिटीज आपके अंदर पहले से है, जो स्किल आपके अंदर पहले से है, विच देयर इज नो कंपल्शन ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। जो स्कल्पचर होते हैं, कई बार उन्होंने बेसिक एजुकेशन भी लिया नहीं होता है ना, मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार होते हैं, उनके पास भी आर्ट है। पेंटर होते हैं, ये जरूरी नहीं कि कोई कहीं जाकर के वो सीखे। सिंगर हैं, म्यूजिशियन है, ये जितने भी हम लोग नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इनबॉर्न क्वालिटी को भी प्रदर्शित करता है। द रिजल्ट ऑफ एन आर्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दो दे परफॉर्म विद द सेम क्वालिटी और स्किल। तो सेम क्वालिटी और स्किल से परफॉर्म करने वालों का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग आप सोनू निगम को दे दो और कैलाश खेर को दे दो, है ना, दोनों का जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो डिफरेंट होगा, जबकि लिरिक्स सेम है। सो इट डिपेंड। देयर इज द रीजन, दैट इज द रीजन दैट एवरी फीमेल सिंगर कैन नॉट परफॉर्म लाइक आशा भोसले, है ना, हर एक फीमेल सिंगर आशा भोसले के जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते, और एवरी क्रिकेट प्लेयर कैन नॉट परफॉर्म लाइक सचिन तेंदुलकर। तो सबका आर्ट क्या होता है? अलग होता है। तो यहां पर हमने आर्ट को समझा, एंड नाउ वी आर कंपेयरिंग आर्ट विथ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी हम पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करते हैं? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है? सो सबसे पहला हम कंपैरिजन करते हैं पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल,
Every manager has to handle different situation, has to solve the resource problem, has to handle human resource etc with his own style. तो हर एक मैनेजर जो होता है उसको डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रिसोर्स क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। दिस स्टाइल डिफर्स फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर, और ये डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर। एक पर्सन कोई दूसरा डिसीजन ले सकता है उसी सिचुएशन में, दूसरा मैनेजर कोई दूसरा डिसीजन ले सकता है, एंड सो द रिजल्ट, और उसके हिसाब से रिजल्ट भी वैराई करेगा, रिजल्ट भी अलग आ सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्किल्स एट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है ना? तो सेम सिचुएशन दिया जाए तो एक मैनेजर दूसरा कोई डिसीजन ले सकता है और दूसरा मैनेजर अपना खुद का अलग डिसीजन ले सकता है, और रिजल्ट भी उस हिसाब से अलग अलग आ सकता है। सो इट डिपेंड अपॉन स्किल एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। नंबर 2 इज क्रिएटिविटी। देखिए ये हम एक एक पॉइंट 8 से उठा करके ले रहे हैं। 8 में पर्सनल स्किल था और मैनेजर जो होते हैं उनके अंदर भी पर्सनल स्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू फाइंड न्यू आइडियाज। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नया आइडिया जनरेट करना, ऑन वन वंस ओन टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव। कुछ नया क्रिएट करने का जो लोगों का आइडिया होता है उसे इनोवेशन कहते हैं। मैनेजर फाइंड्स आउट न्यू वेज टू कंडक्ट द एक्टिविटीज। मैनेजर कई बार नए नए तरीके ढूंढता है एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, एंड अचीव द डिजायर्ड गोल, ताकि जो उसके इच्छा के हिसाब से डिजायर्ड गोल है वो उसको अचीव कर सके। ही डेवलप्स न्यू आइडियाज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस सिचुएशन एंड इन द बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस सिचुएशन और बिजनेस एनवायरमेंट में वो न्यू आइडियाज पुट करता है डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जापान में एक बार एक कंपनी जो लॉस मेकिंग थी उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने के लिए उसके जो टॉप अथॉरिटीज थे उन्होंने एक उद्घोषणा की। उन्होंने बोला कि जो कोई पर्सन इस कंपनी को रिवाइव कर देगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा, उसको कंपनी की तरफ से कुछ $1 मिलियन दिए जाएंगे। तो ऐसा हमको कौन चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो काफी मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2 से 3 मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्राई किया। उन्होंने 3-3 महीने का क्वार्टर का टाइम लिया, 3 महीने 6 महीने का टाइम लिया, बट वो रिवाइव नहीं कर पाए। तो 2-3 मैनेजर को ट्राई करने के बाद एक मैनेजर आया और उसने बोला कि ये चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं, और विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ उसने पूरे कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने पूछा कि ये आपने कैसे किया? आपके पहले भी तो मैनेजर आए हैं लेकिन उन्होंने वो अचीवमेंट नहीं दिखाया। तो यहां पर उसने बताया कि मैंने एम्प्लॉयज से बात किया, स्टाफ से बात किया, वर्कर से बात किया कि अगर हमारी एफिशिएंसी की वजह से, हमारे हार्डवर्क की वजह से ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो पहली बात कंपनी बचेगी, आपका जॉब बचेगा, आपको सैलरी लगातार मिलती रहेगी। दूसरी बात, मुझे जो $1 मिलियन मिलेंगे उसमें से मैं आप लोगों को भी आपके हार्डवर्क के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से उसमें हिस्सा दूंगा, तो आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा, है ना? और अगर हम फेल हो गए, कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप लोगों के जॉब चले जाएंगे। तो ये जैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के सामने डिस्कस की तो लोगों को ये बात अच्छी लगी कि उनको अपना जॉब बचाना है, और दूसरा जो $1 मिलियन मिलने वाले हैं उसमें से उनकी भी हिस्सेदारी है। जो प्रीवियस मैनेजर्स आए थे ऐसा कुछ ऑफर उन्होंने एम्प्लॉयज के सामने नहीं रखा, तो एम्प्लॉय को लगता था कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल हो गई तो उसमें हमारा क्या, जो मैनेजर है उसको मिलेगा। बट यहां पर अब डायमेंशन चेंज हो गया, दृष्टिकोण चेंज हो गया। अब उनको लग रहा है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, एंड हेंस विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम हमने डूबती हुई कंपनी को रिवाइव कर लिया। तो ये क्या है? एक सिचुएशन
को ठीक करने के लिए जो इनोवेशन, जो क्रिएटिव आइडिया लगाया जा रहा है, ये डिफर करता है मैनेजर टू मैनेजर। तो यहां पर भी क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है? क्रिएटिविटी। आफ्टर क्रिएटिविटी, थर्ड पॉइंट इज रेगुलर प्रैक्टिस। आपका जो आर्ट है, आपका कला है ना, कोई सिंगर होगा तो वो डेली रियाज करता है, कोई क्रिकेटर है तो डेली प्रैक्टिस करेगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो नेट प्रैक्टिस करेगा, वो उसके पीछे 10 आवर्स 8 आवर्स का प्रैक्टिस डेली देता है। तो कोई भी कला होने दो, उसके पीछे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिमिलरली मैनेजर को यहाँ पर कुछ करना पड़ता है क्या? टू डेवलप एनी स्किल एज एन आर्ट नीड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सिमिलरली मैनेजर ट्राइज टू प्रैक्टिस मैनेजिंग the things by using different technique। तो मैनेजर भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो प्रैक्टिस करते रहते हैं सिचुएशन को हैंडल करने का, एंड स्किल्स टू गेट परफेक्शन इन इट, ताकि वो अपने रिजल्ट में परफेक्ट हो जाए। डेफिनेटली दिस प्रैक्टिस एनेबल द मैनेजर टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन, और इसकी वजह से उसके पास एक आर्ट आ जाता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हैंडल करना है, ये मैनेजर को रेगुलर प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाता है। तो एज अ मैनेजर भी उसे क्या करना पड़ता है? रेगुलर प्रैक्टिस। फोर्थ वन, पर्सनल एबिलिटीज। जैसे आर्ट एक पर्सनल एबिलिटी दर्शाता है। सोनू निगम का काम कैलाश खेर नहीं कर सकता, आशा भोसले का काम नेहा कक्कड़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर एक पर्सनल एबिलिटी होता है। सो एबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन आर डिफरेंट लाइक स्किल्स। मैनेजर यूजेस हिज और हर ओन एबिलिटी, तो जो मैनेजर है वो भी अपना एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। विद दिस abilities, managers coordinate the activities and guide people to achieve their goal। तो managers क्या करते हैं? coordinate करते हैं activities को और लोगों को guide करते हैं कि कैसे वो अपने goal को achieve कर सकते हैं। ठीक है? Thus from the above discussion, अब ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है ना। मैनेजर नीड टू बी क्रिएटिव एंड स्किल्ड लाइक एन आर्टिस्ट। तो इस पॉइंट से ये क्लैरिटी मिल जाती है कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो उसको देखने के पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस हमने 10th लेवल तक भी पढ़ा है, फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। वर्नाकुलर मीडियम को सामान्य विज्ञान और इंग्लिश मीडियम में साइंस करके हमें सब्जेक्ट आ गया। सोशल साइंस करके भी एक सब्जेक्ट है। तो ये साइंस वर्ड है क्या? व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? साइंस रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक organized body of knowledge based on the proper findings and exact principles and is capable of verification। यहां पर हमको परफेक्ट डेफिनेशन मिलता है कि साइंस क्या है। मैं शॉर्ट में बोलूं तो साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस रेफर्स टू सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे में नॉलेज लेते हैं, बेस्ड ऑन द प्रॉपर फाइंडिंग्स, आपने उसमें क्या खोजबीन की, एग्जैक्ट प्रिंसिपल यूज करके, और जिसको वेरीफाई किया जा सकता हो, मतलब किसी को अगर चेक करना है तो उसे चेक भी कर सकता है कि वेदर दिस फाइंडिंग्स आर करेक्ट और नॉट। ऐसा जो नॉलेज है उसे हम कहते हैं साइंस। तो साइंस एग्जैक्ट साइंस भी हो सकता है या सोशल साइंस भी हो सकता है। ठीक है? तो सोशल साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर भी हम एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं, और उससे जो फाइंडिंग्स हमें मिलता है उसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। Any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principle is a science। तो बताया गया यहाँ पे कि कोई भी ऐसा नॉलेज हो जो साइंटिफिकली डेवलप हुआ। अच्छा, साइंटिफिकली डेवलप होने का मतलब क्या है? उसमें आपने डेटा गैदर किया सिस्टमैटिक वे में, आपने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने कुछ एनालिसिस किया, उससे जो डेटा जनरेट हुआ
उसको इंटरप्रिट किया, और इंटरप्रिट करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और ऐसा कंक्लूजन जिसका वेरिफिकेशन फिर से किया जा सकता है, उसी को हम साइंस कहते हैं. लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा. इन ऑर्गेनाइजेशन, managers need to use various technique and theories to stimulate the people for quality output. क्वालिटी आउटपुट के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है? कई बार टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, थियरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, सच एज प्लानिंग, मोटिवेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एटसेट्रा. It usually gives the result in similar direction. Sorry, it universally gives the result in similar direction. तो universally अगर हम देखें तो ये सेम डायरेक्शन में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. Therefore, मैनेजमेंट को भी क्या कहा गया है? साइंस कहा गया. तो इसके बीच में रिलेशन अगर आपको देखना है तो इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. साइंस इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, certain rules and principles. Management principles and functions are also based on the experiments which can be studied through different management theories and approaches introduced by various management thinkers. तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक टाइप का डिफरेंट स्टडी है जिसके अंदर हम थियरीज का इस्तेमाल करते हैं, अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने हमें दी है. Point number 2 in science is use of scientific method of observation. साइंस में क्या होता है? आप भी 10th स्टैंडर्ड तक लैब में गए हैं, आपने देखा है कि जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट होता है वहां पर आप ऑब्जर्व करते हो कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, डेटा क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है. इवन इन सोशल साइंस कोई सोशल एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पर ऑब्जर्वेशन काम आता है कि लोगों का रिएक्शन क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है. यहां पर भी हम वही देख रहे हैं, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन साइंस the conclusions are drawn only on the basis of scientific method of observation. Management also uses systematic method. Management भी क्या करता है? Systematic method का इस्तेमाल करता है for data collection, verification and analysis of that collected data, interpretation of the data, and then on the basis of decisions are taken in organization. मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट बनाता हूं. एक बार क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक मैनेजमेंट की टीम पहुंची जो सोशल स्टडी कर रही थी, और उन्होंने रेस्टोरेंट के ओनर से बात किया कि हम आपके होटल में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे और ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और उसके रिजल्ट को चेक करेंगे. उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन होने के पहले ही रेस्टोरेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट्स. ठीक है ना, बीच में एक कर्टन डाल दिया उन्होंने, लेट अस अज्यूम. ठीक है, तो रेस्टोरेंट का जो एरिया था उस एरिया को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि देयर आर टेबल्स जहां पर हमारे कस्टमर आएंगे, मे बी फॉर लंच और डिनर और स्नैक्स. ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ हमने टेबल्स यहाँ पर लगा दिए. 6 टेबल्स यहाँ पर है, एंड सिमिलरली देयर आर 6 टेबल्स ओवर हियर. अब इस सोशल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसके अंदर ये जो एरिया था ए, इसको इन जनरल वैसे ही रहने दिया जैसे रेस्टोरेंट का ओनर चला रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ये जो बी है इसमें क्या चेंजेस किया गया, यहां पर जो लाइट्स थी उनको कलरफुल थोड़ा डीम कर दिया गया, थोड़ा कलरफुल कर दिया गया, और यहां पर एक हिसाब से कैंडल लाइट डिनर का माहौल किया गया. ठीक है ना, तो हर एक के टेबल पे कैंडल है, लाइट्स बहुत ही डीम है, रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है. इसके अलावा यहां पर जो प्लेट्स हैं इसके साइज के हिसाब से छोटे छोटे प्लेट्स रखे गए. कैसे रखे गए? छोटे प्लेट्स. ठीक है, तो यहां पर पूरे दिन ये एक्सपेरिमेंट चला, लोग आए, लोगों ने खाना खाया, और ये जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे उन्होंने डेटा गैदर किया कि यहां पर आने वाला पर्सन जो था
उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत कम थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत कम थे। मतलब ये जो प्लेट थी वो बड़ा प्लेट देखने की वजह से वो क्या कर रहा था, यहां पर जल्दी फिनिश कर लेता था क्योंकि माहौल बहुत ही नेचुरल था। जबकि बी वाले साइड में कोई पर्सन आता था तो डीम लाइट होने की वजह से एक शांति का अनुभव करता था और वो ज्यादा समय वहां पर बैठता था। तो सिर्फ इतना चेंज करने की वजह से, मींस एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया, डेकोरेशन चेंज कर दिया, और इसकी वजह से कस्टमर ज्यादा टाइम वहां पर रुक रहा है, ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, तो यहां पर होटल का बिल ज्यादा जनरेट हुआ, मतलब उसको ज्यादा रेवेन्यू मिला। तो ये क्या था, एक सोशल एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये डेटा गैदर किया गया और ज्यादातर कस्टमर के साथ में सेम सिचुएशन हुआ। सो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट। तो यही मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि साइंस में क्या होता है, आप सिस्टमैटिक वे से डेटा जनरेट करते हो, उसका वेरिफिकेशन करते हो, एनालिसिस करते हो, डेटा को इंटरप्रेट करते हो, उससे जो डिसीजन आता है उसको आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो। सो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ये मैनेजमेंट में भी होता है, सोशल स्टडीज में भी होता है। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर वहां पर कारण है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं धुआं निकल रहा है तो डेफिनेटली आपके माइंड में होगा कि आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट है कि नहीं, धुआं ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। सो साइंस इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आफ्टर यूजिंग स्पेसिफिक फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन वन कैन गेट पर्टिकुलर रिजल्ट इन साइंस। साइंस में आप कोई फॉर्मूला या कॉम्बिनेशन यूज करके किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। मैनेजमेंट थियरीज आर आल्सो बेस्ड ऑन सच रिलेशन। मैनेजमेंट की थियरी भी ऐसी है। फॉर एग्जांपल एन एप्रोप्रिएट सैलरी एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्ड। अगर आप किसी वर्कर को प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, टाइमली बेसिस पे दे रहे हो, और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, तो ऐसे केस में वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा एंड टू गिव बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ अगर आपने कंडीशन, ओल्ड कंडीशंस दिया है ऑफ मशीनरी अफेक्ट द स्पीड ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहे हो, सो डेफिनेटली आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नंबर 4, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो जो साइंस होता है उसके जो भी प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट भी सेम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने दो, जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फॉयल ने दिया है वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिमिलर सिचुएशन एनीवेयर। दीज universality offers same result of principle anywhere. Similarly, principle of management are universal. It can be applied in any condition and situation. So these points make it clear that characteristic of science can be observed in management. तो साइंस के जो भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैनेजमेंट में देखे जाते हैं। हेंस मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है। हाउएवर मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट मैथमेटिक्स के जैसा, केमिस्ट्री के जैसा प्योर साइंस नहीं है इन विच रिजल्ट्स आर एक्यूरेट and quantitative in nature. Management considered the observation of human factor, so it is a social science. Management क्या है, एक social science है in which result can be observed in same direction, moreover qualitative in nature. ठीक है। So we can conclude over here that management is an art as well as science. So let us take now whether management is a profession or not. Profession को हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ में। A profession, profession है क्या? A profession may be defined as an occupation backed by specialization. तो किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर आप स्पेशलाइजेशन लेकर के आ जाते हो, आप उसमें इतने प्रकांड हो जाते हो कि वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन आप कम समय में बहुत ही इफेक्टिव वे में करके दिखाते हो। So specialized knowledge and training and to which entry is regulated by a representative body
और अगर आपको उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो उसका एक बॉडी है, बॉडी मतलब जैसे इंडियन डॉक्टर्स एसोसिएशन है ना, ऐसा कोई मेडिकल एसोसिएशन जहां से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो इंडियन बार काउंसिल, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ICAI, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो ICSI। ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो इसको रेगुलेट करती है, वहां से सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय दी सोसाइटी, और उसको समाज ने भी रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको आतंकवादी बनने का सर्टिफिकेट दे दूं तो आप प्रोफेशनल आतंकवादी हैं, प्रोफेशनल टेररिस्ट, चलेगा क्या? नहीं, समाज ने भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। Yes or no? So what is a profession? A profession may be defined as an occupation backed by specialization, yeah, specialized knowledge and training, and to which entry is regulated by the representative body and duly recognized by the society, like teacher, doctor, lawyer, chartered accountant come under the term profession. तो इनको हम profession कहते हैं। क्या कहते हैं? Professionals. मॉडर्न अप्रोच हैज ऑफर्ड द स्टेटस ऑफ मैनेजमेंट एज एन इमर्जिंग प्रोफेशन। तो आज की तारीख में जो मॉडर्न अप्रोच है वो मैनेजमेंट को बोलता है इमर्जिंग प्रोफेशन, नॉट अ प्रोफेशन बट इमर्जिंग प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट धीरे धीरे एक प्रोफेशन के लेवल पे जा रहा है। इन दिस ग्लोबलाइजेशन फेज वेरियस एकेडमिक स्कूल्स हैव स्टार्टेड मैनेजमेंट डिग्री कोर्सेज। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट स्कूल्स जो हैं वो डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे MBA का कोर्स होता है ना, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIM। देन पुम्बा है, पुम्बा क्या है? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटीज MBA, ठीक है, एटसेट्रा। These courses have been developed by taking into consideration the need of management of organization। इन्होंने ये कोर्सेज क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। Nowadays people choose management as a career। आज की तारीख में लोग मैनेजमेंट को एक करियर की तरह लेते हैं, है ना, MBA वगैरह करते हैं। दे एक्वायर द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन एंड ट्रेन देमसेल्फ फॉर द मैनेजरियल जॉब। तो वो उस तरीके का एजुकेशन एक्वायर करते हैं और उस टाइप का जॉब सिलेक्ट करते हैं जहां पर मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। द रिलेशन बिटवीन प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसके अंदर क्या रिलेशन है? फॉर्मल एजुकेशन। क्या प्रोफेशनल होने के लिए फॉर्मल एजुकेशन चाहिए? आंसर इज यस। बट क्या मैनेजर होने के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन का होना जरूरी है? लेट अस चेक इट आउट। प्रोफेशन नीड्स फॉर्मल एजुकेशन। आपको टीचर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको एक फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ेगा। टुडेज मैनेजर्स आर आल्सो क्वालिफाइड विद द मैनेजमेंट डिप्लोमा और डिग्री। आज की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है या MBA के कोर्सेस होते हैं जो आपको मैनेजमेंट में स्पेशल डिग्री प्रोवाइड करते हैं। दे टेक फॉर्मल ट्रेनिंग फ्रॉम मैनेजमेंट स्कूल विच हेल्प देम टू वर्क प्रोफेशनली। तो आज की तारीख में ऐसा होता है बट ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैनेजर ने MBA किया हो, बट आज की तारीख में ज्यादातर लोग मैनेजमेंट स्कूल से MBA की डिग्री लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? उनके काम करने का तरीका, है ना। लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका एक अटायर होता है। अगर लॉयर की आप बात करें तो आपको पता है लॉयर काला कोट पहनते हैं, ब्लैक कोट, है ना। और दलील देने की उनकी क्या तरीका होता है, क्या स्किल होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे डॉक्टर है, सो डॉक्टर को व्हाइट कोट पहनना पड़ता है, और डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट आपने 3 इडियट्स की मूवी में भी देखा होगा। करीना कपूर बोलती है कि एक डॉक्टर है तो फिर वो पेशेंट को कभी भी उसको देखना पड़ेगा, भले उसके पास फीस देने के पैसे हो या ना हो, वो डॉक्टर का कर्तव्य है ना, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सो कोड ऑफ कंडक्ट मींस वेल सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। वेल सेट रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग इन दैट फील्ड। तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, जो लॉयर है लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। एवरी प्रोफेशन हैज सच कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन में उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कंट्रोल ऑन द एथिक्स ऑफ कंसर्न प्रोफेशन, lawyer has to follow the code of conduct framed by the Bar Council of India।
जो लॉयर है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा. आर्किटेक्ट हैज टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम्ड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू वर्क according to the Institute of Chartered Accountant of India, ICAI. However, the managers, there is no such association of manager. ऐसे मैनेजर का कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए. जनरली द मैनेजर फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशन. तो क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, उसके ऊपर बेस्ड करता है कि मैनेजर को कैसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए. तो स्पेसिफिकली उनका कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता. Expertise. A professional as an expert is an expert in his or her field who has knowledge acquired through formal education. Expert कौन है? जिसके पास expert professional knowledge है, जो उसको उसके formal education से मिला है. By practicing, they get a skill required for that profession. Practice करते करते उनको वो skill मिल जाता है, acquire कर लेते हैं जो जिसकी उनको जरूरत है. Manager also becomes an expert by practicing his or her knowledge and skill. Manager भी ऐसे ही होता है, अपने knowledge और skill को practice करते करते वो भी professional बन जाता है. Registration. Professional need to register themselves with their association. हर एक professional को अपने association से registration करना पड़ता है, ठीक है ना. जैसे मैंने बताया लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसका रजिस्ट्रेशन है. अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो लॉयर के जैसा काम नहीं कर सकता. जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, ICAI, वहां से आप पास कर गए और आपको सर्टिफिकेट दिया गया, अगर वो सर्टिफिकेट आपका कैंसिल कर दे तो एज अ सीए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो आपको रजिस्टर करना होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर देमसेल्फ विद द ICAI. विदाउट सर्टिफिकेट दे कैन नॉट कैरी आउट प्रैक्टिस. बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर भी अपना डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकता नहीं है. इन द केस ऑफ मैनेजर देयर इज नो सच बॉडी. मैनेजर के केस में ऐसी कोई बॉडी नहीं है to register themselves. However, managers can take the membership of Chamber of Commerce. तो मैनेजर अगर चाहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, विच गिव देम बेनिफिट, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. बाकी प्रोफेशन में एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है. आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा. आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उनका पूरा का पूरा फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं. द एंट्री इज एनी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. It needs a formal education, for example doctor, lawyer, chartered accountant, etc. However, such compulsion is not there for becoming a manager. ऐसा मैनेजर बनने के लिए होता नहीं है. तो कंक्लूजन क्या होता है, इसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट थे जहां पर मैनेजर के साथ में वो मैच होता नहीं है. इसके लिए we can conclude that management is not a profession but is a emerging profession. क्या है वो, emerging profession. On the basis of our discussion, it is very difficult to say whether management is a profession or not. तो ये बहुत difficult है क्योंकि कुछ features match कर रहे हैं, कुछ features match नहीं कर रहे हैं. Management does not require any formal education. There is no separate governing body of regulations and there is no separate code of conduct for the manager. तो ये कुछ negative point है, negative in the sense जो match नहीं करते हैं profession के साथ में. Anyone who wants to run any business can work as a manager. जो भी business को run करना चाहता है वो मैनेजर के जैसा काम कर सकता है, irrespective of the formal education. तो उसने MBA किया हो नहीं किया हो, formal education लिया हो नहीं लिया हो, it doesn't matter. उसको मैनेजर का काम करना है तो कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता. Therefore, till the date, management has not received recognition as a profession. तो आज की तारीख तक डॉक्टर के जैसे, लॉयर के जैसे, टीचर के जैसे मैनेजमेंट को ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिला है. From the above discussion, it can be concluded that management is a combination of an art, a science and a profession. तो मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन का एक कॉम्बिनेशन है. It cannot be considered as only art और ओनली साइंस और ओनली प्रोफेशन. तो हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से, एक ही डायमेंशन से नहीं देख सकते कि सिर्फ वो आर्ट है, सिर्फ वो साइंस है या सिर्फ वो प्रोफेशन है. ऐसा नहीं, वो आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है. इसका कॉम्बिनेशन है. इट इज अ कंबाइंड एक्टिविटी. अ मैनेजर हैज टू यूज हिज और हर ओन स्किल in the form of innovative ideas, smart techniques or creativity to solve situational problem and achieve the goal. Goal को achieve करने के लिए
मैनेजर को अपने स्किल को, अपने हुनर को, अपने क्रिएटिव आइडियाज को इस्तेमाल करना होता है. इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट. इसके लिए मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है. Similarly, a manager has to work on the problems or of organization by applying different principles, different technique based on the different theories. जैसे साइंस में यूज होता है. Conclusions are drawn after collecting the analyzing data. It means management is a science. Nowadays, people are adopting management as a career. आज की तारीख में बहुत सारे लोग मैनेजमेंट को एक करियर के हिसाब से देखते हैं. They can take formal education and training of management and can work as a manager of an organization. तो फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं और मैनेजर के जैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं. देयर आर बिहेवियरल रूल बेस्ड ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशन. तो मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स भी बनाए जाते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशन के ऊपर जो बेस्ड होते हैं, विच कैन बी कॉल्ड एज देयर कोड ऑफ कंडक्ट. इट मींस मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा जा सकता है. फ्रॉम द अबव पॉइंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. It is adopted as a profession nowadays. तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है कि मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया गया है एज अ प्रोफेशन, है ना. तो इन्होंने कंक्लूड नहीं किया कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बट इन्होंने कंक्लूड किस पे किया? इट इज अडॉप्टेड एज अ प्रोफेशन nowadays. Okay, so done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with distinguished part. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.